It does not. Welcome to another episode of Atmanirbhar Bharat. This program focuses on the steps taken by our nation on its road to self-reliance. Our topic today is the economic recovery in India, the return of economic activity, and also the declining active COVID-19 cases in India have raised hopes of a recovery. High frequency indicators like core sectors, that includes core sector data, GST collections, auto sales, all are showing improvement, and those are significant signs for a second consecutive month in October. Those are signs of a revival in the Indian economy. While corporate India is gung-ho about this sustained momentum, what could it mean for the rest of India? Yes, a second challenge of COVID-19 is hit Europe and the United States, and it raises concern. But what is the way forward for Team India, or what is the way forward for businesses and investors? Will the light shine on Indian economy? That's going to be our top focus today over the next 60 minutes. I am Anil Thomas, and with me this afternoon is my co-anchor CS Joshi. Good afternoon. थैंक यू अनिल। तो आइए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मेरे सहयोगी अनिल ने बताया कि कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन का टाइम था, भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले अक्टूबर महीने के जीएसटी के आंकड़े आए हैं, जीएसटी संग्रह के आंकड़े आए हैं, और आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, अच्छा संकेत दे रहे हैं। आंकड़ों का संकेत साफ है कि कोरोना काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था जो कमज़ोर हो गई थी वो दोबारा रिकवर करने लगी है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद होंगे। गेस्ट कौन है अनिल आज? बिल्कुल, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं आज के इस कार्यक्रम में। टू स्पेशल गेस्ट जॉइनिंग अस दिस आफ्टरनून। लेट मी इंट्रोड्यूस बोथ ऑफ देम। First is Dr. Charan Singh joining us this afternoon. Dr. Charan Singh is a senior economist joining us to give us insights on is it going to be a road of revival for Indian economy. Also, Professor Dheeraj Sharma, Director IIM Rohtak, joining us this afternoon to give us insights on what are the indicators that one should look at when it comes to, you know, the revival or the economy heading towards north. Let me come to you first, Dr. Charan Singh. Dr. Charan Singh, when you look at this particular story, for the second consecutive month, numbers looking good, but would you say that will the light shine on, is the light finally shining on Indian economy? Let me rephrase it. Is the light finally shining on Indian economy, and do we see great days ahead? Good. I totally agree with you. The figures which have come are very encouraging, and I was expecting it for long. Okay. The Indian economy is a very resilient economy. We have survived such episodes many times over a period of time, though they may not be of this large dimension, but every time we have bounced back with record performance. In this very case, the festival season has started. Now, if people at my age know it, earlier we used to have a busy season and a lean season policy. Okay. This is the season when the festival starts. When festival starts, the people's sentiments are high, enthusiasm is high, the passion is high, and this is getting mixed with the revival of the economy that is bound to happen. Now, there are many things that has happened in this. This is not by accident. Many things the government has done over a period of time. Many initiatives have been announced. Throughout the lockdown, the government neck to neck has been working with the people, seeing, ensuring that the gaps are covered, pain points are covered, and that the businesses start operating. Whenever they start operating, whenever the lockdown unwinds, they start operating at full swing. That's exactly what has happened. Fortunately, in the agriculture sector, we did not have too much of problem. Rabi crop was beautiful. Monsoon has been very good. So tractor sales are doing very well. Though in urban centers, most of the places, metros have not started, but that is already visible by the car sales are up. Maruti is not only saying within the country, they are saying even domestically. Even Hero is saying the same thing. Motorcycle sales, two-wheelers, both domestic and exports are doing very well. That was as expected. Also, please remember that with the festival season coming in, the marriage season also is coming in. There have been no marriages or very few marriages during the past 6-7 months, but now they are opening up, and therefore that also brings in demand. So rural economy is doing well.
the urban economy started moving and doing well, and that is what you see in the figures that is getting reflected basically in the purchasing managers index that you have seen. Is doing very well. So my own feeling is, if we take the precautions like the mask and wash your hands, things which we were not understanding in the initial stages, lockdown has made us understand that. The medical facility and fraternity is ready to handle cases. There are wards that will be built, some medicines have already been discovered, some impact of those medicines is happening. So now we don't need another lockdown, as you just mentioned, in Europe and other parts where the second lockdown is coming. Maybe we don't need the second lockdown. Okay. But in case we continue with the precautions, I think we are on an upswing. The government has done it, and people who are waiting to open up, and therefore I see better times in the next few months. प्रोफेसर धीरज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं IIM रोहतक के। प्रोफेसर शर्मा, जिस तरह से हम लगातार अपने ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं कि अक्टूबर में जो GST कलेक्शन हुआ है वो 1 लाख करोड़ को पार कर गया है, और हम साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इससे राज्यों को भी फायदा होगा, और ये एक अच्छा संकेतक है भारतीय अर्थव्यवस्था के कोरोना के प्रकोप से निकलने का। और जैसा कि चरण सिंह जी बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, मानसून भी अच्छा था, और आने वाले समय में फसल भी अच्छी होने वाली है। तो इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो एक बुरा समय था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया है और अच्छा समय शुरू हो गया है? अच्छा समय तो तभी शुरू हो गया था जब हम अनलॉकडाउन प्रक्रिया अनाउंस किया था भारत सरकार ने। अब आप अगर देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अच्छी चीज जो उभर के आ रही है वो है रूरल डिमांड। अगर आप FMCG सेक्टर को देखें, जिसे हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो रोजाना की हमारे रोजमर्रा की चीजें जो जाती हैं, रूरल सेक्टर में इसकी डिमांड जो बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है पहले से। इसका मतलब ये है कि हमने अपनी मार्केट को एक्सपैंड भी किया है, और जो नई मार्केट है जिसमें हमने एक्सपेंशन किया है रूरल मार्केट में, नई नई चीजें वहां पे लोग खरीदते हैं। अगर आप इसको जोड़ें मोटरसाइकिल सेल्स के साथ, तो अगर आप उसमें देखें तो रूरल डिमांड मोटरसाइकिलों की पिछले 1 क्वार्टर में काफी बढ़ के उभर के बाहर आई है। सबसे बड़ा मुझे लगता है जो असर हुआ है वो ये भी हुआ है कि जो इंटरेस्ट की जो दर है वो बहुत कम कर दी गई थी। वेरियस रीजंस, भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए, बैंक्स ने बहुत सहयोग दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी, जिसे हम व्हाइट गुड्स कहते हैं, उसकी कंजम्पशन भी, जिसका कि डायरेक्ट इंपैक्ट अगर आप देखें तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर इंस्टेंस ट्रैक्टर्स, कंबाइंस, थ्रेशर्स, इनकी सेल्स के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो आत्मनिर्भर भारत बनने का प्रयास और कर रहा है, उसका सबसे बड़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो अब हमारी रूरल मार्केट बन के उभर के आएगी। अगर आप सर्विस सेक्टर को देखें तो सर्विस सेक्टर में भी अगर आप देखें तो रिकवरी के निशान आने शुरू हो गए हैं। होटल्स, रिलीजियस जो प्लेसेस हैं वो खुलना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जो आउटकम जो आई है वो हम ग्रेजुअली डिसिप्लिन्ड बनते जा रहे हैं। डिसिप्लिन होकर ही हम कोरोना का उसके अतिक्रमण को उसको रोक सकते हैं, और मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और अपनी जिंदगी में चल पड़े। रूरल इंडिया ने ये दिखा दिया है, अर्बन इंडिया को ये और दिखा। Professor Dr. Charan Singh, when you look at this particular story about revival of the economy, Professor Dheeraj mentioned about rural India being the driver. Do you somewhere feel that agriculture, considering that we've had the good produce there due to the good rains, the good monsoon season, the agricultural produce has increased, the farmers have money to spend, and will the focus once again come along with rural India? The focus will come on farmers to be the drivers of economic revival. In our country, the farmers, though agriculture and allied activities contribute less than 20% of GDP. Agreed. But you know that nearly 55% of the Indian population lives in the rural areas. So in the rural areas, if things are looking up better and they're looking robust, as Professor Dheeraj just mentioned, that in the rural areas things are looking brighter and better.
because the agriculture performance has been very good, monsoon has been very good. The government has been supporting the Manrega program, which is the Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Program. Lots of money has been spent on that. Migrant labor has gone back to the villages and they are engaged. The government has come out with various schemes to finance the unorganized sector. Many of them come from the rural sector. You remember, even those people, hawkers, they can get 10,000 rupees. Moreover, the Mudra schemes are doing very well. So because the money is being pumped into the rural sector and the organized sector, there is certainly revival of demand there. Now, a very clear indication is the tractor sale. People go and buy new tractors, and tractor sales, I was reading the data, is really doing very well. 18% increase over the previous year. That itself is an indication. Then Professor also mentioned about the white goods. Okay. Correct. Those white goods, then the machinery starts and everything starts moving together. So according to me, the rural sector is certainly going to give very good support. But then the issue is, in the overall economy, rural sector accounts for less than 20% of GDP. Okay. That is why, in his wisdom, he also mentioned about the services sector. The point he is making is services sector account for nearly 60% of the GDP, and if there is revival in the services sector, then that is very widespread. Now the issue is, in the services sector, travel is not going to happen too much, tourism is not going to happen too much. We all know, we are all skeptical, but then the government has been talking about it. And you remember, the government also announced the LTC scheme for government employees, encouraging them to go around and spend money. So my own feeling is the services sector will also start showing improvement. Okay. जी, प्रोफेसर शर्मा, सवाल इसी तरह का आपसे भी है कि सरकार ने काफ़ी सारे कदम इस बीच में उठाए जब कोरोना के बाद लॉकडाउन शुरू किया गया, लेकिन लॉकडाउन के बीच में सरकार लगातार सक्रिय रही, कई सारे कदम उठाए, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स को लेकर के कदम हो या किसानों को लेकर के कदम हो। इन कदमों का कितना असर आप देखते हैं, जो अभी हमको अब परिणाम मिल रहे हैं जीएसटी रिकवरी, जीएसटी कलेक्शन के रूप में, क्या कुछ असर उन कदमों का आप देख रहे हैं? जीएसटी रिकवरी जो है वो एक सिंबल तो है ही, उसके अलावा मेरे ख्याल से जो पावर कंजम्पशन है वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है। तो रेल जो लोड कैरी करती है, आप अगर इसको हिस्टोरिकली स्टडी करें, कोल इंडिया लिमिटेड अकेला एक ऐसा कस्टमर है जो मेरे ख्याल से रेलवे का तकरीबन 30-35-40% जो रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आप सिर्फ उसी को स्टडी कर लें कि कितना उसमें मूवमेंट है जिसका लिंकेज बिजली से है, और दूसरा अगर आप ये देखें कि एक ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वो ये होता है कि वो ये बताता है कि कितना लोग परचेज कर रहे हैं। वो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है वो अब सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है उसका पिछले क्वार्टर से इस कंपेरिजन। मेरे ख्याल से अब नंबर जो है 50 की दर को क्रॉस कर गया है। तो वो ये सब जो है ये आउटकम्स हैं जो ग्रेजुअली हमने आहिस्ता करके हमने इस कोरोना को मैनेज भी किया है। और आप देखिए कि हमारे डेथ रेट भी कम रहे हैं, इसलिए हमारे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को हमें पर्टिकुलरली उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने हमें। और दूसरा मुझे लगता है कि ये शक्ति है भारत के जो सिटीजन हैं उनकी एक इंजेन्युइटी, उनकी एक क्षमता, एक शॉक बर्दाश्त करने की, और जिसने कि हमें अब ये पाथ ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी को काफी तेज किया है बाकी देशों के कंपैरिजन। Okay. Dr. Charan Singh, when you look at record sales in auto division, or auto sales, there are record numbers. But how do you explain that? Is it the rural market that's providing a cushion to the deflated cities? Especially when it comes to auto sales, since agriculture is good, you're having more money to spend, so more money being spent on jewelry, other commodities like auto sales. That's how they are picking up. Or do you feel that auto sale numbers that we are looking at are clearly, the growth rate that you're seeing clearly is almost, at par when it comes to urban as well as rural India? That's a very good question. I have answered for it. I hope it's analytical enough to satisfy you. There are a couple of things there.
You see, the metros and public transport has not opened in the cities. And people, whatever little is there, they do not want to crowd in some buses which are running. So most of the people who were using public transport have shifted to their private vehicles. Now, the people who were on bicycles probably have shifted to two-wheeler motorized, and who were in two-wheelers already have shifted to small cars. That's why Maruti is showing beautiful results. So my own feeling is the absence of public transport has encouraged people to buy private transport. Now, it's not easy. So where is the money coming from? If you look at the gold sales, and what I understand from NBFCs and otherwise, gold is becoming a very important currency now. So the people are transacting gold, taking loan against gold. Banks are sitting and waiting. They're flushed with funds. They're looking for opportunities to lend. So moment they found that, okay, auto sales are doing well, they have started financing autos. And therefore, you find there's a surge in the demand for the automobile. Now, the surge in demand for automobiles is across the spectrum. Commercial vehicles have done well. The cars are doing well. Two-wheelers are doing well. So there's a complete spectrum around which there's been a higher demand. So I think I look at it from the angle of the absence of public transport and the private cars and vehicles and two-wheelers trying to fill in the gap to take care of the transport requirement. That is where I put it. The last point I want to make in this is very impressive that both Maruti and Hero have said that their export segments are also doing very well. So that also indicates in the rest of the world is also opening up. The demand is beginning to show up there, and the rest of the world is demanding cars and vehicles. So that's something very positive in addition to the domestic demand. डॉक्टर चरण सिंह, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका ये मानना है कि चूंकि त्योहारों का सीजन नजदीक था इसलिए डिमांड बढ़ा है और इसीलिए जीएसटी कलेक्शन अभी बढ़ा है. क्या आगे ये सस्टेन करेगा? बिल्कुल, मेरी अपना ये विश्वास है कि जीएसटी एक इंडिकेटर है जो दिखा रहा है कि मार्केट में व्यापार हो रहा है. और जो व्यापार है ये जैसे मैंने कहा कि जब हम लोगों का बिजी सीजन आता है, एक्चुअली ये गणेश चतुर्थी से शुरू हो जाता है हमारा फेस्टिवल सीजन. तो जब फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है तो लोगों के हृदय में उमंग सी आ जाती है, और क्योंकि इतने दिनों से घर में फंसे हुए हैं तो वो जो पेंट अप है, जो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे, वो भी खुलनी शुरू हो गई है. इसके अलावा क्योंकि अब थोड़ा निडर भी हो गए हैं कि डॉक्टरों के पास कोई दवाई आ गई है, अस्पतालों में अभी इंतजाम हो गया है, कोविड के पेशेंट बहुत ज्यादा उनको हो रहा है पर ठीक होके भी बाहर आ रहे हैं. तो जो शुरू में खौफ था कि हाई कोविड हो गया तो क्या होगा, वो खौफ भी थोड़ा कम हो गया. तो लोग उभर के मार्केट में आने शुरू हो गए. तो जब फेस्टिवल सीजन आपका जो कहने का भाव है कि दिवाली के बाद क्या होगा, मेरा कहने का भाव ये है कि अभी लोग खुल गए हैं, फेस्टिवल सीजन ने वो उमंग ले आई है, और अभी दिवाली के बाद फिर ये बंद नहीं होने वाला है. ये चलता चलेगा होली तक, बीच में क्रिसमस भी आएगी और होली भी आएगी, तब तक ये उसी तरीके चलता जाएगा. और उस टाइम तक हो सकता है हमारे पास कोई वैक्सीन भी आ जाएगा, और ये भी हो सकता है कि हर्ट जैसे एक बार किसी को जुकाम हो जाए तो उसके बाद वो बेफिक्री हो जाती है कि हम उसको वायरस को हैंडल कर सकते हैं. तो उस तरीके अगर कोविड थोड़ा ज्यादा हो जाए तो लोग उसको ओवरकम कर जाए तो वो थोड़ा निर्भय भी हो जाते हैं कि हम इसको संभाल सकते हैं. तो ये जो उमंग है ये बनी रहेगी. इसके अलावा आप देखिए इंडस्ट्री जो है और मैन्युफैक्चरिंग है वो भी सामने आ रही है. जो हमारा लेबर गांवों में वापस चला गया था रिवर्स माइग्रेशन के अंदर, उन्होंने अपना 100 दिन का जो मनरेगा का प्रोग्राम है वो खत्म हो रहा है. ज्यादातर बारिश के बाद, ये बिजी सीजन के टाइम बारिश के अंदर लेबर घर जाता था, और जब बिजी सीजन शुरू होता है वापस आ जाता है, घर बनने शुरू हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, तो वो सारी अब शुरू हो जाएगी. लास्ट पॉइंट इसमें जो मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी सरकार पैसा डाल रही है. वो इन्हीं दिनों में, बारिशों में तो ज्यादा नहीं हो सकता है, इन्हीं दिनों में अभी वो शुरू हो जाता है, मार्च तक चलता है. तो वो भी पूरा एक सपोर्ट करेगा ये उमंग को, ये एंथुसियाज्म को, ये एनिमल स्पिरिट को,
जो अभी खुल के सामने आ रही है। Okay. तो मुझे लगता है ये बना रहेगा। Okay. Professor Dheeraj Sharma, when you look at this particular story, do you somewhere feel the government's move to at least increase the prices of certain crops, especially when it comes to buying them at MSP, also boosting the spread, the spend value through various programs that could help rural employment? Have they also been drivers, especially the government helping these two sectors, the farmers who are directly related to agriculture and those that are, dependent on allied, especially when it comes to labor and that, these two also being drivers when it comes to an economic revival? For farmers is something that is always going to help the government, both from the standpoint of being popular as well as from the standpoint of gaining economically. Just think about this. What is it a farmer going to do when you give a farmer some incentive, some money? Eventually, the farmer is going to spend and bring it back into the economy, purchase something, procure something. That aspiration in the farmer has to be created. And the signaling of the government has been that you are getting this money. Now, from an aspirational standpoint, you should consume certain items which are now available to you in the market in the form of maybe agricultural equipment, maybe personal vehicles, maybe other white goods. So what will eventually happen is that over a period of time, the standard of living per se on the standard parameters which are there, which essentially go up, which means rural living could improve. I think this will have a substantial impact even on the matters of real estate, on the matters of people preferring to live in the rural areas. Okay. Maybe over a period of time, I think there's also going to be a substantial reversal in terms of use of preference for personal vehicles. So I think electric is going to be another important area which probably will spur the growth going forward for our country. ठीक है। डॉक्टर चरण सिंह, एक सवाल यहाँ पर आता है, जिस तरह से आपने बताया कि अब माहौल बहुत अच्छा होने जा रहा है, त्योहारों का सीज़न अभी भी है और आने वाले समय में भी काफ़ी कुछ त्यौहार आने वाले हैं, चाहे हम क्रिसमस की बात करें या होली की बात करें, तो इस सब के बीच में अभी क्या कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि हम इस न सिर्फ जो हमें अभी गेन मिला है इसको सस्टेन कर सकें बल्कि इसको बढ़ा भी सकें? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। बिल्कुल, तो अभी तक तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब लोग उभर के सामने आ रहे हैं, फिर इसको सस्टेन करना है। और ये सवाल खास करके अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में वो सेकेंड वेव आ रहा है। जब सेकेंड वेव में वो लोग डर के लॉकडाउन कर रहे हैं, क्या हमें लॉकडाउन करना चाहिए? ये पहला सवाल तो यही है। और अगर नहीं करना है तो आगे ये उमंग को कैसे बना के रखें और सपोर्ट कैसे देते रहे, ये दूसरा उसका भाग है। तो मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि हमें इस टाइम पे लॉकडाउन दूसरे की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग अभी चैतन्य हो गए हैं और सतर्क है कि हमने हाथ धोने और मास्क रखना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो पहली बात तो वो है। अभी उसको मेंटेन करने के लिए मेरा ख्याल जो सरकार कर रही थी, फिस्कल स्टिमुलस दिया सरकार ने, जिससे काफी कुछ समझा, मनरेगा में पैसे बढ़ा दिए, उससे भी काफी कुछ समझा, उसको जारी रखना पड़ेगा। फिर सरकार ने टैक्स पे भी हमें कुछ हॉलीडेज दी, टैक्स डेट्स उन्होंने पोस्टपोन की। मेरे को लगता है कि फिस्कल अथॉरिटी होने के नाते उन्हें वो भी जारी रखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम पूरी सहूलत दे रहे हैं कि आप बेफिक्री से जाके अपना काम शुरू करिए, ये जो चीजें हैं इस टाइप पे हम संभालेंगे। अभी आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? जीएसटी का पैसा आपने देख ही लिया, कुछ बढ़ना शुरू हो गया है। अभी पीछे 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मार्केट बोरिंग पे भी हो रहा था कि सरकार ऋण ले सकती है, देश की केंद्रीय सरकार भी ऋण ले सकती है, प्रांत की सरकार भी ऋण ले सकती है। तो जो वहां पे कमी हुई टैक्स कलेक्शन में, हम उस तरीके उसको पूरा कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिनको हम इस्तेमाल करके पूरी कोशिश कर सकते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं। सरकार के पास औजार है। एक सबसे बढ़िया औजार होता है मॉनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। जब सरकार के पास पैसे की थोड़ी कमी हो जाती है तो रिजर्व बैंक को कह सकते हैं कि थोड़ा पैसा हमें मिंट करके दो, प्रिंट करके, उधार नहीं, प्रिंट करके दो। अभी लोग कहते हैं कि जब प्रिंट करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अभी आप 2008 के बाद देखिए पूरी दुनिया में क्या हुआ, इन्फ्लेशन तो नहीं बढ़ी, जबकि अमेरिका, यूके, यूरोप में इतना पैसा उन्होंने अपने रिजर्व बैंक से लिया, तो वो डर नहीं है। तो अभी हमारे पास पूरे हथियार है, औजार है, जिसके साथ हम अपनी सिचुएशन संभाल सकते हैं।
अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, मुझे जहां तक लगता है कि अभी भी गुंजाइश है रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की, ताकि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है और जो इंडस्ट्री है और खास करके इवन उपभोक्ता है, उनको एकदम कम दर पे जब पैसा मिलेगा तो उनके मन में भी होगा इसको खर्चा करें। कहाँ खर्चा कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग तो अपनी इंडस्ट्री में कर सकते हैं, नया कैपिटल लगा सकते हैं, इनपुट्स बढ़ा सकते हैं, पर जो हाउस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, घर बनने शुरू हो सकते हैं। एक घर के अंदर करीब 300 कंपनियां बीच में हिस्सा लेती हैं, रबड़ की, लकड़ की, सीमेंट की, टाइल की, पत्थर की, प्लास्टिक की, वाटर पाइप की, इतनी इंडस्ट्री, एक घर बने तो करीब 300 इंडस्ट्री उसके अंदर जो है, तो इस सब को उभारा जा सकता है। सरकार इस पे लेजर बीम अप्रोच के साथ इंसेंटिवाइज कर सकती है। डॉक्टर चरण सिंह, एक सवाल आपसे भी पूछेंगे और प्रोफेसर शर्मा आपसे भी हम पूछ रहे हैं। दरअसल अभी हम जो बात कर रहे हैं ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं और जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या बड़ी जो इकोनॉमी है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, माना एक उदाहरण के लिए हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं, अभी लोगों में लोग मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर अभी थोड़ा सा डर है। जिस तरह से अभी रेस्टोरेंट में लोग नहीं जा रहे हैं या सर्विस सेक्टर में उतने लोग नहीं जा रहे हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? कोरोना का प्रसार भी ना हो और ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, रेस्टोरेंट हैं या दूसरे सर्विस सेक्टर हैं, इनको उबारा जाए। डॉक्टर शर्मा जी। तो मेरे ख्याल से तो देखिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जो रेस्टोरेंट ओनर हैं या होटल चला रहे हैं या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो ओपन डिक्लेरेशंस दें कि वो कोविड से रिलेटेड एसओपीज को कंप्लाइड हैं, लोग वो वहां जाना पसंद करेंगे। मान लीजिए 4 रेस्टोरेंट हैं, 4 रेस्टोरेंट्स के बाहर एक रेस्टोरेंट ने लिखा है कि वो एसओपीज को फॉलो कर रहा है और कोविड प्रिकॉशंस ले रहा है। तो सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको ये देता हूँ कि ऑन डिमांड सर्विसेज देखिए, बिल्कुल जो आपके फूड डिलीवरी वाले, उसमें ऐसा कोई मेजर इशू उभर के कोई मीडिया में या कहीं पे आया नहीं है। इसका ये मतलब है कि जहां जहां लोग एसओपीज को फॉलो करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री को कंज्यूमर का विश्वास जीतने के लिए एक एसओपीज की फॉलोइंग की ओपन डिक्लेरेशन, नंबर 2 उनको कंप्लायंस डिक्लेरेशन के हम कंप्लायड हैं कि सारी चीजों को कंप्लायंट हैं, ये डिक्लेरेशन। और मेरे ख्याल से इसमें तो इवन रेटिंग एजेंसीज और रेगुलेटर्स जो हैं वो मदद कर सकते हैं कि वो डिक्लेयर करें कि ये फॉलोइंग रेस्टोरेंट, फॉलोइंग होटल्स या ये रिलीजियस प्लेसेस भी, मैं तो ये कहूंगा कि उनको भी अगर रेगुलेटर्स जाके देखें और सर्टिफाई करें कि यहाँ पर ये एसओपीज और गाइडलाइंस फॉलोड हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि वहां पर ये बहुत ही ज्यादा डिमांड ग्रोथ होने का अभी भी स्कोप। ठीक है शर्मा साहब, यही सवाल हम डॉक्टर चरण सिंह आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी शर्मा साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, ऑनलाइन तो मामला बड़ा है लेकिन ऑफलाइन भी बढ़े, सर्विस सेक्टर की बात करें या विभिन्न जिन सेक्टर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, कैसे इसको किया जा सकता है? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको, क्योंकि उन लोगों के यहाँ कई लोग काम भी करते हैं, वो रोजगार भी देते हैं, तो कैसे इसको किया जा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें 2-3 भाग में ये सवाल मैं देना पसंद करूंगा। पहली बात है रेस्टोरेंट्स की। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्री शुरू हो गई है दिल्ली, बम्बई में, इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अभी इंडस्ट्री शुरू हो गई, लोग अपने अपने दफ्तरों में जाने शुरू हो गए। इस टाइम पे जो रेस्टोरेंट, सिट इन रेस्टोरेंट्स होते थे कि जाके वहां बैठिए और खाना खाइए, उनको अभी एकदम ऑनलाइन सर्विस देना चाहिए कि हम जहां भी आप हैं, हमारा डिलीवरी बॉय आके आपको खाना देगा, आप फिक्र मत करिए। तो जैसे ही ये वाली सर्विस शुरू होगी, जो की कमी हुई है कि लोग अंदर आके बैठ के खाना नहीं खा रहे हैं, तो डिलीवरी सर्विसेज अगर शुरू कर देंगे वो उनके लिए अच्छा है। प्रोफेसर ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर वहाँ पे वो डिक्लेरेशन भी देंगे कि हमारे यहाँ जितने वो मुलाजिम काम कर रहे हैं, आप हमारी किचन में आके देख लीजिए, वो मास्क पहन के बैठे हैं, जगह जगह पे हमने हैंड सैनिटाइजर लगाए हुए हैं, बार बार हैंड सैनिटाइज करते हैं, और हल्का सा किसी को बुखार हो, हमने वो थर्मामीटर लगा के ही अपने मुलाजिम को अंदर रखते हैं, नहीं तो उसको उसी टाइम घर भेज देते हैं। तो लोगों का भी विश्वास बढ़ेगा कि जहाँ से खाना आ रहा है वो पूरा अच्छा खाना है। तो एक तो डिलीवरी सर्विस शुरू हो जानी चाहिए, और रेस्टोरेंट को ये पूरे जोर से शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, अगर जो लोग घर में भी बैठे हैं, पूरी परिवार के परिवार घर में बैठे हैं, महिला पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, अगर रेस्टोरेंट ठीक दाम पे खाना घर भी पहुंचा दें
तो लोग ऐसा नहीं शुरू करेंगे कि कम से कम दोपहर का खाना बाहर से आ जाए, तो उनको भी फायदा है और जो घर में महिला रहती है उनको भी। दूसरे पूरे दिन से ट्रैवल तो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग कर रहे हैं, हवाई जहाज से, ट्रेन से कर रहे हैं, पर लोगों के पास कारें हैं, स्कूटर है, नजदीक के टूरिज्म सेंटर है, टूरिज्म सेंटर को भी ये बताना चाहिए कि हमारे कमरे पूरी तरह सैनिटाइज है, हमारे होटल सैनिटाइज है, हम तो जहाँ पे ये टूरिस्ट प्लेस में पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पे कोविड हम फैलने नहीं देंगे, सुबह शाम को स्प्रे कर रहे थे, विश्वास कर जाएगा कि टूरिस्ट सेंटर भी पूरी तरह प्रिकॉशन ले रहे हैं। तीसरा हमारे देश में रिलीजियस टूरिज्म बहुत होती है, हम सब लोग गुरुद्वारा, मंदिर, गिरजाघर जाना पसंद करते हैं। हमारे इस टाइम पे सीजन, जो फेस्टिवल सीजन है, ये फेस्टिवल सीजन मंदिरों और गुरुद्वारों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ पर भी ये हमें विश्वास मिल जाए तो यहाँ पर जो कमरे है, रिहाइश है, जो प्रबंध किए गए हैं, पूरा हम लोगों ने कोविड को समझ के रखा हुआ है, तो आप देखेंगे रिलीजियस टूरिज्म भी दोबारा वापस आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अब विदेश से भी हम उसी तरीके इन्वाइट कर सकते हैं कि हमारे देश में ये टूरिस्ट सेंटर है जहाँ पर कोई फिक्र की बात नहीं है। हम्पी एक सेंटर है, आप उसको बढ़ा सकते हैं, गोवा बढ़ा सकते हैं। कई देशों ने यहाँ तक आके ऐलान कर दिया है कि हमारे यहाँ पे हम बिल्कुल कोविड फ्री हो गए। तो उस तरीके हमारा देश इतना विशाल है, बाकी के देश छोटे छोटे वो ऐसी बातें कर सकते हैं, हमारा देश इतना विशाल है, बस कम से कम हम टूरिस्ट सेंटर्स को तो कह सकते हैं कि ये टूरिस्ट सेंटर एकदम कोविड से हमने मुक्त कर दिया है, पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। तो उससे एकदम ये एक बार फिर दोबारा टूरिज्म और हल्की सी पर्सनल ट्रैवल भी शुरू हो जाएगी, वो हमने तो विदेश से भी टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे। और हमारे अंदर के जो टूरिस्ट है, खास करके हमारे यहाँ टूरिस्ट सेंटर इतने ज्यादा है, हर शहर के साथ 2-3 टूरिस्ट सेंटर बने हुए हैं, खाली पड़े हैं। अगर दूर से नहीं, कम से कम लोकल पॉपुलेशन मथुरा में दिल्ली और नोएडा के लोग जा सकते हैं, उसी तरीके से जा सकते हैं, पर वहां से कोई ऐलान तो आए, वहां का डीसी या कमिश्नर या एमपी बोले कि हमने ये सब कर दिया है, यहाँ आना शुरू करिए, तो आप देखेंगे। यानी कि डॉक्टर चरण सिंह, आप कहना चाहते हैं कि जो राज्य सरकारें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, जो उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट हैं या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, उनको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए। लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस का भी तो फर्ज है। बिल्कुल। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार इतनी मेहनत कर रही है, मैं लोकल बॉडीज का नाम ही नहीं सुनता हूँ। उनको भी चाहिए आगे बढ़ के कि ये हमारे यहाँ आगरा के देखिए, हमारे यहाँ ये, हमारे यहाँ ये है, तो आप देखेंगे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। उधर भी ऐसी सहूलतें दी जा सकती है। आप जैसे ही वहां गए, अगर वो देख ले कि आपका मास्क अच्छा नहीं है, वो आपको मास्क देंगे, जी हमारे टूरिस्ट सेंटर में आप कुछ फैलाए नहीं, इसलिए हमारा ताकतवर मास्क लीजिए, हाथ अपना धोइए। तो उस तरीके अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी ऐसे करेंगी, लोग घरों से आना शुरू हो जाएंगे। हम सब लोग के लिए अच्छा रहेगा। Okay, Professor Dheeraj Sharma, we recently heard the Finance Secretary talk about no one is saying this is going to be the end of the stimulus. We'll intervene at the right time. Do you feel now, is there a need for an intervention with regards to a stimulus? And if so, which are the sectors that we need to look forward to? This question is first to Professor Dheeraj Sharma and then to Dr. Charan Singh. I think at the present time, there has already been a stimulus given. I think one needs. No, the Finance Secretary talked about, a window there, and this is not the end of the stimulus is what he said. He said as and when required, we'll come with another stimulus package. So I'm asking you, is there a need for that in the first place? If so, which are the sectors that need the stimulus package? I'm trying to answer the same question. Is that there is already a stimulus which has been given, and that has to be estimated, the impact of which has to be estimated first. Okay. Before one can talk about a second stimulus. So the outcomes now of the stimulus sectorally have to be examined in depth. As it appears, I believe that credit penetration is one area which is going to require significant support. That being said, that if you would see US as a country with a population of about 350 million has got about, I think, over 20,000 banks. India has got about 500-600 banks.
China has nearly 18 or 20 banks in the top 100 banks in the world. India has only one, State Bank of India. So I believe the rural as well as the sectoral, as well as to increase the credit penetration, one of the areas which is going to require a lot of stimulus is going to be the financial services and the banking industry. Okay. That I believe would be the key to then giving impetus to the industry to utilize the credit and probably result in some outcomes for themselves as well as for the nation. ठीक है डॉक्टर चरण सिंह, एक सवाल यहाँ पर आता है कि अब आने वाले समय में आपका अनुभव क्या कहता है, आपको क्या लगता है कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ज्यादा काम करने की जरूरत है अभी? और खासकर एक सवाल इसमें और आपके साथ इसी सवाल पर हम जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर की इकोनॉमी सही है लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात करें तो वो किस तरह से चल रहा है, क्या उसको भी कुछ ठीक करने की जरूरत है? तो देखिए, मेरी समझ में स्टिमुलस की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने देश में देखा है, आपने कहा कि आंकड़े अच्छे आने शुरू हो गए, ये सारे स्टिमुलस की बदौलत हुए हैं। उन्होंने कितने ध्यान से, समझ से अलग अलग टाइम पे स्टिमुलस दिया है, उसी कारण ये देश इतने मुश्किल घड़ी से निकला है, पूरी दुनिया निकली है। हमारे देश में क्योंकि हमारी यहाँ जनसंख्या छोटी है, उम्र कम है और लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग हम हर महीने अपने वर्क फोर्स में डाल रहे हैं। एक साल के अंदर 1 करोड़ लोग हमारे वर्क फोर्स में आ जाते हैं। इतनी यंग हमारी डेमोग्राफी है, उसको एंगेज रखना, कहीं ना कहीं उनको काम देना, रुझान में रखना, उसमें स्टिमुलस की बहुत जरूरत है। वो असर दिखा रही है। मुझे लगता है हमें जब शुरू हुआ था किसी को विश्वास नहीं था कि ये लॉकडाउन 6 महीने 8 महीने चलेगा। जैसे जैसे स्थिति बदलती गई, वायरस इतना बिगड़ता गया और हमें वैक्सीन मिला नहीं, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। लॉकडाउन बढ़ने से हम समझ पाए कि ये हालात तो बहुत ज्यादा गंभीर है। ये तो 1918 का जो स्पेनिश पैंडेमिक है उस तरीके 2-2.5 साल चलेगा। वैक्सीन बन भी गया, उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 50% होगी। इतने बड़े देश सबको वैक्सीन देना उसमें काफी समय लगेगा। तो कहां पर ये स्टिमुलस देना चाहिए? बैंक हमारे हैं, हमारे बैंक जो पब्लिक है, निजी क्षेत्र में है, प्राइवेट सब हैं, वो पूरा फटे हुए हैं। तो हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज करना है, उनके एथिक्स का डर है। पहला उधर हमने कुछ करना है। दूसरा, मैं जैसे बता रहा था, टूरिज्म एकदम बंद हो गया है। तो टूरिज्म में पैसा कम लगता है, लोग बहुत उसमें एम्प्लॉय हो जाते हैं। हर जगह पे कोई टूरिस्ट गाइड बन रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई वहां पे पकोड़े बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई मंदिर और पुजारी, उन सबको भी रोजगार मिल जाता है। तो कहने का भाव है कि टूरिस्ट सेंटर एक और जगह है जहाँ पे हमें टारगेटेड देना पड़ेगा स्टिमुलस। तीसरा, एमएसएमई, 6 करोड़ एमएसएमईज है, 12 करोड़ लोगों को एंगेज करके रखते हैं, एम्प्लॉय करके रखते हैं। सबसे ज्यादा वहां पर मोर्टेलिटी रेट होता है, उनके पास इतना नफा नहीं होता है, इतना पैसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा चोट वहां पर लगती है जब भी कोई ऐसा सिचुएशन बन जाती है। उनको एमएसएमईज को थोड़ा फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा। आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग, जैसे मैंने कहा, हाउसिंग बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देता है, लेबर को बहुत एंगेज रखता है और काफी इंडस्ट्रीज को फायदा देता है। तो हमें टूरिज्म, हाउसिंग, इसमें भी स्टिमुलस फोकस करके देना पड़ेगा और एमएसएमई को भी देना पड़ेगा। और बैंकों को इस काम में लगाना जरूरी है, उनको रिकैपिटलाइज करके। वो कहेंगे कि पैसा हमारा डूब रहा है, लोग पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हालात ठीक नहीं है, और उनको पीछे से रिकैपिटलाइज करते जाएंगे तो वो हमारी पूरी जो सप्लाई चेन है, हमारा पैसे की आराम से सोसाइटी में जाती जाएगी। इसमें मैं और कहनी चाहूंगा, जो हम लोगों के नीतिकार लोग ज्यादा सोचते नहीं है, उसमें एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं। बैंक तो एक स्तर तक दे सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एकदम लोगों के बीच में फैली होती है, तो उनको भी थोड़ा एक्टिवेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है फिस्कल स्टिमुलस के नीचे जो उनमें बुरी है उनको निकाल दीजिए, पर उनमें अच्छे भी हैं, सरकारी भी हैं, तो उनको संभाल के साथ में लेके उधर भी थोड़ा फिस्कल स्टिमुलस देना पड़ेगा। Okay, Dr. Charan Singh, quickly taking a look at, considering the corporate tax rate, that was restructured. We have one of the lowest corporate tax rate when it comes to, anywhere in the world. But having said that,
do you feel there is a need for tinkering of the tax rate when it comes, if it can be used as a tool to create, more demand boost in the market? Do you feel that window is option, or that window should not be tampered with at any cost or tinkered with at any cost? मुझे लगता है कि जो हमारा टैक्स रेट है, इस टाइम पे काफी अच्छा रेट चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 3-4 दिन पहले भी जब दुनिया भर के लोगों से बात किया था स्पेशली, तो उधर भी उन्होंने कहा था कि 15% देखिए टैक्स रेट है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे, अब इससे नीचे क्या होगा। पर एक बात आपने जो कही, जो मैं सोचता हूँ बहुत अहम है, जिसपे हम लोग ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कभी कभी कहते हैं, पर मुझे लगता है उस पर पूरा जोर दे के काम करना पड़ेगा। 1980 में जब चाइना खुला नहीं था, वहां पे एक भी विदेशी कंपनी काम नहीं करती थी। मार्च 2020 में 2,61,000 कंपनियां चीन में काम कर रही थी, फॉरेन कंपनी। अब चीन के साथ जो हुआ तो हुआ, पर हमारा फर्ज है कि हमारे ये जो चाइना से निकलेंगे विदेशी कंपनियां, तो वियतनाम जा रही है, बांग्लादेश जा रही है, एस्टोनिया, इंडोनेशिया जा रही है, उनको हम यहाँ अपने यहाँ ले आए। तो चीन ने कैसे ये 2,61,000 कंपनी अपने यहाँ बुला ली 10-15 साल के अंदर? उन्होंने टैक्स हॉलीडेज दी। तो आप टैक्स की बात कर रहे थे, मेरा जो मन है कि अगर विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पे आके पैसा डालना चाहें और कंपनी खोलनी चाहे और कंपनी एस्टैब्लिश करनी चाहे, तो सरकार शायद सोच सकती है कि जैसे चीन उनको 15 साल की टैक्स हॉलीडे दे देता है, जमीन फ्री में उनको दे देता है, उनको पता है जमीन देने से यहाँ फैक्ट्री लगेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो भी ये लोग कमाएंगे वो यहीं पे खर्च हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी यहीं पे आ जाएगा। तो हो सकता है शायद, अगर ठीक समझे, तो ऐसी कंपनियां जो विदेश में यहाँ आ रही हैं, उनको 15% भी, क्योंकि चीन 0% करता है, टैक्स हॉलीडे देता है 10-15 साल के लिए, ऊपर से शेड बना के देता है, जमीन बिना कॉस्ट के देता है, लेबर के रहने के लिए जगह बना देता है, लेबर भी उनके लिए अरेंज कर देता है। शायद अगर सरकार ठीक समझे तो इन टैक्स हॉलीडेज के बारे में उन कंपनियों के लिए सोच। डॉक्टर चरण सिंह, आप क्या होलिस्टिकली इसको बोल रहे हैं, या पर्टिकुलरली चाइना की कंपनीज के लिए बोल रहे हैं, या सारी कंपनीज के लिए, सारे देशों की? मैं कह रहा हूँ विदेशी कंपनियों के। जी, आप विदेशी कंपनियों को यह कह दें कि हमारे यहाँ आइए, इधर उधर भटकने की जगह बांग्लादेश, वियतनाम कहाँ जा रहे हैं, इतना विशाल देश है, इसकी अपने यहाँ बड़ी डिमांड है, रूरल एरिया में डिमांड और पनप रही है, इतनी जनसंख्या है, यंग है, लेबर फोर्स है, पढ़ी लिखी है, टेक्निकली स्किल्ड है, कंप्यूटर में माहिर है, और हमारे पास हर किस्म का देश में जगह है। पोर्ट लाइन चाहिए तो साउथ इंडिया है, अगर खनिज पदार्थों के पास आपने फैक्ट्री खोलनी है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार है, अगर हरियाणा में खोलनी है, नॉर्थ ईस्ट है, अगर ठंडे इलाके में खोलनी है तो जम्मू है, तो शिमला है, हिमाचल है, तो सारा कुछ हमारे पास यहाँ है। अगर विदेशी कंपनियां यहाँ आके सेटल करना चाहती है इतने विशाल देश में, छोटे छोटे देशों की जगह, तो हमारे पास जगह भी है, हम आपको टैक्स हॉलीडे भी देंगे, जमीन भी आपके लिए मुहैया करा देंगे, लेबर भी अरेंज कर देंगे, हमारे इतना यहाँ लेबर फोर्स है, वहाँ उनके लिए भी जॉब ढूंढने हैं। तो टैक्स हॉलीडे के नाम पे अगर हम उनको अट्रैक्ट कर सके तो हमारे सब लोगों के लिए अच्छा, उनके लिए भी अच्छा है। चाइना से लोग इतने नाराज हैं, चाइना से बाहर भी निकल पाएंगे, और इतने बड़े विशाल देश में भी उनको पावर रखने का मौका मिल जाएगा। और हमें ये फायदा है कि हमारी जो विदेश कॉटेज इंडस्ट्री है, उनको दुनिया भर में वो जाके सामान बेच सकते हैं, तो अब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि टैक्स हॉलीडे का हम किस तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर और आता है कि एक दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि जो हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, कई देश हैं, और उनमें से कई देश ऐसे हैं जहां पर अभी कोरोना की स्थिति सही नहीं है। तो हो क्या रहा है कि हमारे देश में तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, और कई जगह पर जो रॉ मटेरियल आता है बाहर से, उसको लाने में दिक्कत आ रही है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ये सवाल मेरे लिए है। जी जी जी, देखिए, आपने ठीक कहा कि जहाँ पर हम लोगों ने आयात करना है तो वहां पर निर्यात करना है, तो वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, इनपुट्स की या आउटपुट की। पर आपने देखा, मारुति ने कहा, हीरो ने कहा कि हमारी तो एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छी हो रही है। कुछ विदेशों में, कुछ विदेशी देशों में बिल्कुल ठीक है, कोरोना की महामारी दोबारा आ रही है, पर सब में ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमें भी अपनी डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि कहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे विदेशी दूत है ना, विदेशों में जो हमारे दूतावास है, हमारा फर्ज है कि उनको एक्टिवेट कर दे, उनको बोले ये कंपनियां कहीं से भी और कहाँ पे इनपुट्स मिल रहे हैं,
उनसे इनपुट्स रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो हम अमेरिका से पहले इनपुट लेते हैं, अगर अमेरिका में नहीं मिल रहा है तो शायद वो फ्रांस में मिल रहा हो। तो इस तरीके से हम लोग अपने इनपुट्स, और ज्यादातर क्या होता है जब देश आगे बढ़ता है और जब मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ती है तो रॉ मटेरियल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल्स कोई जरूरी नहीं कि ये विदेशी एडवांस कंट्रीज में हो, या अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज गतिशील नहीं है, रॉ मटेरियल्स हम उनसे भी इनपुट कर सकते हैं। तो हमारे दूतावास जो है उनको अगर एक्टिवेट कर दें तो हमें दोनों चीजों में सहायता कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव इनपुट सोर्सेज भी ढूंढ सकते हैं और हमारे एक्सपोर्ट के लिए मार्केट भी ढूंढ सकते हैं, और विदेशी कंपनियों के वहां पे सेमिनार करके उनको बता सकते हैं कि हमारे देश में क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं, उनको यहाँ पे लाने का मौका हमें दे सकते हैं। एक बार यहाँ पे आके पैर रखेंगे, हवाई जहाज से उतरेंगे, तो हमारे देश के इंडस्ट्री हाउसेज, ट्रेड एसोसिएशन को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं कि वो भी बीच में सहयोग दे और हम उनको यहाँ एस्टैब्लिश करने का पूरा सफल एक्सपीरियंस दे। Well, that's a very valid suggestion that you are making when it comes to roping in our embassies abroad to get us alternate forms of resources, alternate forms of resources that can come at a low cost and the quality can be maintained. Shifting once again to Professor Dheeraj Sharma, looking at the path-breaking reforms that have taken place by the government, steps taken by the government, especially during this pandemic times, labor laws, production-based incentives, also farm law amendments that have taken place. Do you feel these have helped accelerate that window of growth that you are looking at, and that's the result that we are been able to see in the last 2 months? I think some of these laws have only been changed very recently. Again, it would be very difficult to comment on its impact on the outcomes which we are seeing now. We are assessing these outcomes. The outcomes are of the months of August, July, August, and September, and partly October. However, I think the industry is springing back because we were in a state of lockdown. Okay. Now, what is evident is that first of all, I think it is the ingenuity of the government that they announced the stimulus at the right time. Number two, I think the Prime Minister has a really high credibility that he was able to convince the nation to be disciplined. I mean, just imagine how other countries are having second wave, third wave, whereas India, we have, despite a large population, we've been able to contain the COVID spread to a certain degree. I mean, number of cases may be rising, but if you take it proportionate to our population, it is incredible that we've been able to do it, and this is because of people's trust in the leadership in handling the crisis. Now, the recovery that we are seeing is the recovery where our country is normalizing. I again go back to the rural and the tier 2, tier 3 city economy, because you see there is a lot of what we call latent demand. Demand is there. Let me illustrate this with an example. If you remember, way back in 1990s when McDonald's first opened, or when Starbucks first came in about 10 years ago, people lined up. Why did people line up? Because there was a latent demand. Professor Saab, दरअसल we have come to the end of the program. डॉक्टर चरण सिंह, लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे। काफ़ी अच्छी आपसे हमारी बातचीत हुई और काफ़ी कुछ सॉल्यूशंस भी आपने बताए, लेकिन जान है तो जहान है, कैसे अब बैलेंस बिठाया जाएगा, संक्षेप में बताइएगा। तो मेरी राय में ये प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि जान है तो जहान है, ये बहुत अच्छी बात कही थी। उस टाइम पे हमने लॉकडाउन किया था। अभी हम लोग को एक 6-7 महीने के लॉकडाउन में हर घर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, सब में ये बात फैल गई है कि प्रिकॉशंस लेना है और अपने आप को खुद संभाल के रखना है और तंदुरुस्त रखना है ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। इस दौरान काफी यहाँ पर काढ़े भी बने जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती जाए। अभी प्रॉब्लम यह है कि सर्दी का मौसम आ रहा है और सर्दी के मौसम में आमतौर पे एक तो हवा और एक ठंड के कारण कुछ ऐसे आसार हो सकते हैं। कोविड खुद निमोनिया का शेप लेके हल्ला उसको अटैक करता है। तो मुझे लगता है कि आपके मीडियम, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडियम के सब अगर कोशिश करेंगे और प्रिकॉशंस पे हम लोग जोर देंगे, ये देखिए प्रिकॉशंस लीजिए, आप तंदुरुस्त रहिए, हमें लेबर की जरूरत है,
देश को अगर 5 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन या 25 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनना है, चाइना के साथ और अमेरिका के साथ हमें अगर मुकाबला लेना है, तो तंदुरुस्त भारत ही, फिट भारत ही हम लोग ये कर सकते हैं। इसलिए प्रिकॉशंस लेते जाइए, मास्क करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और सर्दी का दौर थोड़ा खतरनाक दौर होता है, कोविड इसमें पनप सकता है, इससे बचिए ताकि सेकेंड लॉकडाउन का नौबत ही हमारे देश में ना आए। तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि लेबर भी तंदुरुस्त रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी, और जो मैंने आपको सुझाव दिए कि टूरिज्म वगैरह हमने बढ़ाना है और रिलीजियस फेस्टिवल्स बढ़ेंगे, सारे त्योहार। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, दरअसल समय खत्म हो गया है। Well, we're really running short of time. Thank you and appreciate both you gentlemen, Professor Dheeraj Sharma, Director IIM Rohtak, and also Dr. Charan Singh for taking time out, joining us on this special telecast of Atmanirbhar Bharat. Suggestions that have come in place, suggestions that are important, just as the Finance Secretary spoke about a stimulus package as and when needed, the government will intervene, and the government will intervene at the right time. Suggestions coming in, I would say, packs there when it comes to our two experts, suggestions about helping the banking and the financial sector, especially in particular, because they would have the financial power then to help the other industries to grow. That's not all. Tourism, MSMEs, along with housing and non-banking financial sectors that need to be taken care, especially when it comes to a stimulus package, if and when it comes. But we'll keep our fingers crossed on that particular aspect of a financial or a stimulus package coming. But there are signs of revival we've seen in the last 2 months, and over the last 16 minutes we got inputs from our two esteemed guests who told us about the road to revival that's happening in Indian economy. The festive season is there, and the festive season can be seen as late into March, as Dr. Charan Singh put it, till Holi is when the festive season in India continues. Let's hope that the road to recovery, the road to revival also has the next 6 months, and we looking at good old days back again. बिल्कुल, और हम भी आशा करते हैं कि कोरोना के प्रकोप से जल्द जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो निकल जाए, और उसके लिए क्या कुछ करना है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और इंडस्ट्री अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, और आपको भी कोशिश करनी है, और साथ ही साथ मास्क भी पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको जारी रखनी है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।